So we are doing the Keynesian theory of money and prices today, right? So what Keynes has given, why Keynes has given a new theory, or he has reformulated this quantity theory of money. Initially, he has also given an equation in the Cambridge, because he belongs to the Cambridge University, right? So उसका equation वहाँ पे भी है, but he again later on he refuted the theory and he said कि यहाँ पे एक direct and proportional relationship between the price between the quantity of money and price is not happening. It is not right, and दूसरा he has tried to in his new theory he has tried to integrate the theories, the monetary theory with the value theory, right? So he tried to interconnect that through the help of rate of interest, right? And he criticized the classical theory on the basis of that it has been he said that it is applicable only in a static condition, right? So और static condition में ही होगा कि money will be neutral to the economic forces, various economic forces, right? और variables. और एक्चुअल में जो है इकोनॉमी में जब जो वेरिएबल्स चेंज होती है तो इट लीड्स टू अ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम, ना कि एक स्टैटिक जगह पे रहता है. इट लीड्स टू अ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम डिपेंडिंग ऑन the situation of full employment, or is it less than full employment or over full employment. So equilibrium, he has given a theory of shifting equilibrium, right? So इसकी theory में we'll see कि how he has tried to interconnect the monetary theory with the value theory, right? through the rate of interest, right? So हम लोग आगे बढ़ते हैं and coming on the assumptions of Keynes. All factors of production are in perfectly elastic supply so long as there is any unemployment. जब तक बेरोजगारी होगी, we will consider or assume that the resources or the factors will be in perfectly elastic supply. मतलब जितनी डिमांड उतना continuous supply भी होता रहेगा, कोई bottleneck नहीं, कोई रुकावट नहीं, right? All unemployed factors are homogeneous. होमोजेनस एक समान, मतलब कि सबकी क्षमता, प्रोडक्टिविटी क्षमता एक समान है, परफेक्टली डिविजिबल भी है, राइट? एंड इंटरचेंजेबल भी है. एक की जगह पे दूसरा, लेबर की जगह पे कैपिटल, इस तरह से इंटरचेंजेबल, या एक लेबर की जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूटेबल, राइट? देन देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो उत्पादन पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई हो रहा है, मतलब कि जितना फैक्टर्स का रेशो बढ़ेगा उतने ही रेशो से हमारा उत्पादन स्तर भी बढ़ेगा, राइट? सो दैट प्राइसेस डू नॉट राइज और फॉल एज आउटपुट इंक्रीज. जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं पहुंच जाते तब तक कीमतों में इसीलिए कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलने के कारण प्राइसेस में वृद्धि नहीं होगी जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग अचीव नहीं कर लेते, राइट? एज द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, वहां पे प्राइसेस में कोई राइज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू कीन्स. देन इफेक्टिव डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ मनी चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब कि जितना लोगों के हाथ में पैसा आएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई बढ़ेगी, राइट? तो उतना ही द इफेक्टिव डिमांड विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन, राइट? जब तक कि रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, राइट? सो ऑन दीज बेसिस कीन्स हैज given the theory on the basis that quantity of money or price level are indirectly related through the rate of interest. They are not directly related, right? So how it happens, and he considered the marginal efficiency of capital will also remain constant. So remaining the MEC constant, when the rate of interest falls, क्या होगा? Volume of investment will get increased. Alright? So this is the transmission mechanism जिसमें Keynes ने अपना इस थियोरी को इलाबोरेट किया है. एंड कीन्स के अकॉर्डिंग जब इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी होता है तो इट रिजल्ट्स इन फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाई इट हैपेंस? अब जब लोगों के हाथ में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो लोगों के पास क्या आता है? पैसा आता है, राइट? पैसा जब हाथ में आएगा तो एक्सेस सप्लाई ऑफ एक्सेस जो मनी होगा लोगों के पास, लोग उसको बॉन्ड खरीदने में डालेंगे, राइट? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको बोल सकते हैं, या और तरह की सिक्योरिटीज, तो वो बॉन्ड खरीदेंगे. मतलब कि क्योंकि उसने, आपको पता है कीन्स ने अपने लिक्विडिटी प्रेफरेंस में 3 मोटिव्स बताए हैं. क्या क्या?
ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्यूलेटिव, राइट। सो वो स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए जो मनी मांगा जाएगा, राइट, स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए जो मनी का कैश होल्डिंग रहेगा, राइट। सो वो कैश होल्डिंग वो लोग वो डिपेंड करेगा, स्पेक्यूलेटिव मोटिव का जो कैश होल्डिंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू हिज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है ना, वो क्या करते हैं, लोग बॉन्ड्स में लगाते हैं, राइट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ताकि फ्यूचर में इनकम कमा सके उससे, राइट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न कुछ तो मिले वहां से, पैसे अपने इनकम के इनकम को वहां इन्वेस्ट करके, राइट। सो हम लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे जब पैसे ज्यादा होंगे, बॉन्ड खरीद की डिमांड बढ़ेगी, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड प्राइसेस विल स्टार्ट राइजिंग, और बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेगी तो बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, ऑब्वियस है, राइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घटेगा तो डिमांड फॉर कैपिटल, दैट इज इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ेगा, राइट, क्योंकि कैपिटल की प्राइस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, राइट, इट विल रेज इनकम एज वेल। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, वेजेस भी बढ़ेंगे, राइट। जब वेजेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है, वेजेस बढ़ने से इट विल रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, and this raised cost of production will be included in the prices, जिसकी वजह से prices बढ़ जाएंगे वस्तुओं सेवाओं की, right? So this is how quantity theory has of reformulated quantity theory of Keynes has interlinked the monetary theory with the value theory. This is the prices of goods and services now in the real market, product market, commodity market, जो भी बोलो आप, है ना। So this is how through this rate of interest he tried to connect the monetary sector and the real sector of the economy, right? So ये इंटरकनेक्शन दिखा रहा है कि प्राइसेस जो है वो डायरेक्टली नहीं बढ़ते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ते ही प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, बल्कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है। वो रीजन मैंने बताया क्यों बढ़ता है, क्योंकि बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के लिए, लेबर के लिए डिमांड बढ़ेगा, वेज रेट बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल के लिए डिमांड बढ़ेगा, उनके भी कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ क्वांटिटी ऑफ मनी लीड्स टू चेंजेस इन प्राइसेस, बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, सीधा नहीं, राइट, इट विल हैपन थ्रू दिस साइकिल, राइट। So this is how he has elaborated through this transmission mechanism कि कैसे value theory और monetary theory को इसने integrate किया है, right, which earlier classical economists could not do. They have made separate compartments for both the theories, monetary theory अलग और आपका real theory, value theory अलग, right. So through this diagram we can see here कि how, right, assuming all the assumptions की क्या क्या थे, considering all the assumptions क्या क्या थे, constant returns to scale. So जैसे जैसे उत्पादन quantity of money बढ़ी, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला। सो जैसे जैसे रोजगार बढ़ा, आउटपुट भी बढ़ा। सेम 45 डिग्री का ये एंगल दिखा रहा होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, राइट। सो आउटपुट बढ़ा, राइट। सो ये है OF जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आउटपुट को दिखा रहा है, सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को दिखा रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट कितना होगा वो बता रहा है, F यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को। सो टिल फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड, increase in quantity of money only leads to increase in output. जबकि classical earlier theory what they said, फिशर का अप्रोच हो या कैम्ब्रिज इक्वेशन में हो, क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ते ही प्राइसेस बढ़ते हैं, रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बट अदर थिंग्स डू नॉट रिमेन constant, right? It leads to change in rate of interest, which leads to investment, and then it leads to more generation of more employment and income or output, right? So that is the reason quantity of money जब तक full employment नहीं पहुंचते हैं, बढ़ने से निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आउटपुट भी बढ़ेगा, आउटपुट का कर्व सीधा यहाँ तक पहुंचेगा, right? After reaching full employment, आउटपुट का कर्व हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक पैरेलल टू द OY एक्सिस,
राइट। दैट मीन्स यहां से लेके क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो भी आउटपुट के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर चुके हैं। कोई रिसोर्सेज बचा नहीं है जिससे कि हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सके, राइट। सो प्रोडक्शन विल कम हियर एंड इट विल बी स्टैंड स्टिल हियर एट दिस फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड उसके बाद कर्व, आउटपुट का कर्व, ये आउटपुट का कर्व है, OTC इज द आउटपुट कर्व। सो दिस TC portion shows कि output after full employment will remain constant, right? Then coming here, वो यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ मनी ही है ऑन दिस एक्सिस, और ये बी पैनल के डायग्राम है, और यहाँ पे हमने अब प्राइस को लिया है। नाउ विल सी द चेंज इन प्राइसेस विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी, जब तक ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की प्राइस है ये अभी तक, ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे है, ये इतना पोर्शन आप देख रहे हैं, सेम यहाँ पे भी है एरिया। सो जब तक क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी, जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंचते, हमारा प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा। आपका अजम्पशन था ना कि प्राइसेस विल नॉट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आपका प्राइसेस जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले नहीं बढ़ेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट हियर, जो है पहले से डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने ये प्राइस तय किया तो वो यहीं पे स्टैंड स्टिल है। क्वांटिटी ऑफ मनी जितना मर्जी बढ़ जाए अभी, राइट। अच्छा, अब क्वांटिटी ऑफ मनी इसके बाद भी बढ़ेगा, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर रीचिंग दिस फुल एम्प्लॉयमेंट? आपका प्राइस का कर्व 45 डिग्री के एंगल से यहाँ से अगर हम लोग बनाएंगे, सो ये सीधा यहाँ से मूव करेगा। दैट मीन्स जितना क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाएंगे प्राइस लेवल उतना बढ़ता जाएगा। गॉट इट? सो दिस PRC इज द प्राइस कर्व that shows the changes in price level due to changes in quantity of money. So till full employment it will remain stable here. After this it will rise constantly, right, with the increase in the quantity of money. So this is how he has elaborated his theory through this diagram as well. So superiority, ये last इसका हम लोग आते हैं इस पे last slide पे। तो superiority of Keynesian theory of money and prices over the अर्लियर थियोरीज ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में दिया है, राइट। फिशर्स का अप्रोच हो, ट्रांजैक्शन अप्रोच हो, या फिर कैम्ब्रिज इक्वेशन हो, उनमें क्या कमियां थी और कीन्स का थियोरी उससे क्यों बेटर है, राइट। सो इट एनालाइजेस द कॉजुअल प्रोसेस। यहाँ पे वो जो आपके क्या कहते हैं कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है और किस तरह से वो कॉजल प्रोसेस हो रहा है, वो पूरा उसने एनालाइज करके बताया कि ये इस तरह से होता है, राइट। पहले इसमें चेंजेस आते हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से, और उस क्वांटिटी ऑफ मनी में के बढ़ने से आपका फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है, देन इट लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन फाइनली इंक्रीज इन प्राइसेस, राइट। सो इट हैज एस्टैब्लिश्ड अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हियर, पूरा एनालाइज किया है। देन इट इंटीग्रेट्स दी, और जबकि क्लासिकल्स की थियोरी में सीधा सीधा बता दिया कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल है वो सीधा डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनली रिलेटेड है, राइट, विदाउट एनी लॉजिक दे हैव टोल्ड दिस थियोरी, राइट, they have given this theory. Then the Keynesian theory integrates both the monetary theory as well as the theory of value through this mechanism of rate of interest, right. वो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में हमने देखा। सो इट इंटरकनेक्ट्स द मॉनेटरी थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ वैल्यू, राइट। जबकि आपका क्लासिकल्स में ये क्लासिकल डिकोटोमी उसको नाम दिया है डॉन पेटिंकिन ने, जहाँ पे बिल्कुल दोनों ही को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांट दिया है, मॉनेटरी थ्योरी को और थ्योरी ऑफ वैल्यू को, कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है और दोनों ही अपने आप ही अपनी प्राइसेस, यहाँ पे मॉनेटरी थ्योरी में आपका एब्सोल्यूट प्राइसेस के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ वैल्यू में रिलेटिव प्राइसेस के बारे में बताया, तो दोनों वहाँ पे अलग अलग तय होते हैं, ये उन्होंने बताया। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट and one influences the other. So Keynes tried to interconnect them. Then it integrates the monetary theory with the theory of output as well, right? जैसे theory of monetary theory में हमने देखा जब निवेश होता है, निवेश की वजह से आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फिर आउटपुट बढ़ता है, राइट। सो इट इंटीग्रेट्स मॉनेटरी थ्योरी विद द थ्योरी ऑफ आउटपुट एज वेल, राइट। इसमें भी यहाँ पे इंटरकनेक्शन जोड़ा है, राइट। देन no assumption of full employment, इसको जरूरत नहीं पड़ी, इसने लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी क्या होता है वो भी बताया, और इक्विलिब्रियम कहाँ होता है वो भी बताया, और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वो कैसे होगा वो भी बताया, राइट। सो इसको फुल एम्प्लॉयमेंट का assumption लेने की जरूरत नहीं पड़ी।
देन देयर इज एनालिसिस, इन्फ्लेशन क्यों आता है, राइट, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों आता है वो भी बताया, और जो कि सेमी इन्फ्लेशन जिसको बोल सकते हैं, वो बॉटलनेक्स की, अब उसने अज्यूम किया कि यहाँ पे कोई बॉटलनेक नहीं होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते रहेंगे जितना जितना इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी। बट ये भी बताया कि जो उससे पहले की इन्फ्लेशन अगर आएगी तो दैट इज नोन एज दी सेमी इन्फ्लेशन, जो कि कुछ इकोनॉमी में बॉटलनेक्स की वजह से, जैसे कि लेबर अवेलेबल नहीं है फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, सीजनल काइंड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी देयर, है ना, इमोबिलिटी ऑफ लेबर कुड बी देयर, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज कुड बी देयर, या मशीन खराब हो गया, आज रिपेयर नहीं हुआ, कल तक काम, तो उस तरह की जो चीज़ों की वजह से रिटर्न्स आपके कांस्टेंट ना मिले तो प्राइसेस बढ़ सकती है, तो दैट इज सेमी इन्फ्लेशन। बट एक्चुअल इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू कीन्स स्टार्ट्स व्हेन वी रीच फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड आफ्टर दैट फुल एम्प्लॉयमेंट जितना क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा प्राइसेस भी उतने ही अमाउंट से बढ़ती रहेगी। इन अ डेवलप्ड इकोनॉमीज कॉन्टेक्स्ट ही ऐसे है दैट, हाँ, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में तो ये इसका थियोरी लागू ही नहीं होता है, राइट। देन पॉलिसी इम्प्लीकेशन भी है इसकी थियोरी के, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर फ्रेमिंग अ सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, कि कैसे डिप्रेशन के दौरान और कैसे बूम का दौरान, जो बिजनेस साइकिल्स हमें पता है, सो उस दौरान में हमें किस तरह की पॉलिसी फ्रेम करनी है। अगर इन्फ्लेशन है, राइट, दैट इज बूम है, तो हमें पता है कि वहां पे हमें प्राइसेस जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, डियर मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी होगी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो सेंट्रल बैंक को आपके जो CRR SLR ये बढ़ाने होंगे, राइट, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी को कम करना होगा इकोनॉमी में, लोगों के हाथों में वो मनी जो है वो मनी की क्वांटिटी को कम करना, मनी सप्लाई को कम करना होगा। सो उसके लिए CRR SLR बढ़ा देगी बैंक्स की, है ना, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, राइट, वो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। सो देन जब अगर डिफ्लेशन है तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी, मतलब CRR SLR कम कर देगी, अगेन ओपन मार्केट परचेजेस करेगी सिक्योरिटीज की और इकोनॉमी में पैसा लेके आएगी, राइट। सो दैट इज पॉलिसी इम्प्लीकेशन भी है। बट कीन्स ने फिर भी यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग तो बताया, बट ही कंसीडर्ड कि डिप्रेशन के फेज में फिस्कल पॉलिसी को उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और बोला फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ डिप्रेशन, right, it is very difficult to come out of depression during the phase of from the phase of depression during that, right। so इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग चाहे जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग फिस्कल पॉलिसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, उस टाइम पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, है ना, गवर्नमेंट का टैक्सेस कम करके लोगों की इफेक्टिव डिमांड बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को फिर इफेक्टिव डिमांड जब बढ़ेगा तो उससे फिर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर रोजगार मिलेगा, लाइक दैट, राइट। सो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इस तरह से काम करेगा। बट फिर भी यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट भी बताया, साथ ही साथ आपका फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी कीन्स ने बताया। सो कीन्स की थ्योरी जो है पॉलिसी इम्प्लीकेशन भी दे रही है कि हमें किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी चाहिए इन केस ऑफ बूम और इन्फ्लेशन एंड इन केस ऑफ डिप्रेशन और डिफ्लेशन, राइट। सो दैट इज इट।